Assalamu alaikum. We are here again with another topic of public international law, that is treaties and kinds of treaties. Firstly, we will go through that what is international treaty. The international treaty was basically passed in Vienna Convention on the Law of Treaties in 1969. It was basically entered into force on 27th of January 1980. Now we will see that what basically the word treaty means. Treaty means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation. कि ट्रीटी जो है वो बेसिकली दो स्टेट्स के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है जिसमें दो स्टेट्स रिटन फॉर्म में वो ट्रीटी साइन करते हैं। उस रिटन डॉक्यूमेंट में उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस डिवाइड होती हैं और इंटरनेशनल लॉ अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ उनको उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना होता है। लाइक नाउ दे आर लीगली बाउंड टू फॉलो दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस। और उसमें जो है वो कोई सिंगल टर्म हो सकती है, दो टर्म्स हो सकती हैं, या दो से ज़्यादा जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स पे बेस हो सकता है वो डॉक्यूमेंट, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन होगा, उसकी पर्टिकुलर एक लीगल वैल्यू होगी उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की। वो जो भी डॉक्यूमेंट दो स्टेट्स के दरमियान साइन किया जाएगा। अब हम देखेंगे दी काइंड्स ऑफ ट्रीटी। So we have divided the kinds of treaties in two different forms. First one is according to nature and second one is according to parties. When we firstly we will see according to nature, like according first is lawmaking treaty. Lawmaking treaty, like it is basically a direct source of international law and states are bound to follow that law. If someone is the member state of United Nations, then UN Charter is formulated to make sure to maintain the law and order in the world. So now it is basically a direct source of international law, and ultimately every member state is bound to follow that law. Then there is a treaty contract according to nature. The treaty contract is between two states and both the states are bound to follow. Like this is not something like UN Charter. लाइक यूएन चार्टर जो है ये किस तरह से है कि ये पहले यूनाइटेड नेशंस एक इदारा बनाया गया जिसके डिफरेंट मेंबर स्टेट बनी और उन्होंने ये मेक श्योर किया कि हम दुनिया में पीस जो है उसको प्रमोट करेंगे। पीस प्रमोट करने के लिए आपको कुछ लॉज को फॉलो करना पड़ता है। उन्होंने कुछ लॉज बनाए। अब सब स्टेट्स उन लॉज को फॉलो करने के लिए बाउंड है, लेकिन ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिर्फ दो स्टेट्स के दरमियान का कॉन्ट्रैक्ट है और अब दोनों स्टेट्स जो हैं वो बेसिकली अब उस लॉ को फॉलो करने के लिए बाउंड है। उस दो स्टेट्स के अलावा कोई भी तीसरी स्टेट उस लॉ को फॉलो करने के लिए जिम्मेदार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक्स्ट्राडिशंस और कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइक there might be some kind of contracts between Pakistan and China, Pakistan and India, or Pakistan and Afghanistan. So if these are the contracts between both these states, then only both these states will be bound to follow that particular contract. This is known as treaty contract. Then treaty of convenience. The transfer of the title to land by one or more state to another one. By the term state is here understood not only natural persons but corporations. The instrument which conveys the property is also called a convenience. अच्छा जी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम क्या कहते देखते हैं कि जी क्या होता है कि एक स्टेट जो है वो अपना एक पीस ऑफ लैंड किसी दूसरी स्टेट को ट्रांसफ़र कर देती है या फिर उन्हें जो है वो लीज पे दे देती है। तो ये क्या होता है, ट्रीटी ऑफ कन्वीनियंस। जैसे कि पाकिस्तान ने अपना गवादर पोर्ट चाइना को दिया है और चाइना जो है वो उसके ऊपर इजीली अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकता है। ऑफ कोर्स देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ legal bounds or there must be some rules and regulations, but ultimately we have transferred that particular area
or that particular land to an other state. ठीक है, so this is what, and so the treaty that was signed between those two states for that particular area is basically treaty of convenience. इस तरह से अगर पाकिस्तान ने जो है वो बलूचिस्तान के एक इलाके में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, दैट वाज द रेकोटिक कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें पाकिस्तान के उस पर्टिकुलर एरिया में जो है वो गोल्ड माइंस मौजूद थी, और वहाँ पे जो है वो आके उस पर्टिकुलर कंपनी ने उस गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करना था और कुछ जो है वो परसेंटेज पाकिस्तान को देनी थी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपना एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड जो है वो किसी दूसरी स्टेट के हवाले कर रहे हैं। सो दिस वाज द ट्रीटी ऑफ कन्वीनियंस। देन देयर इज ट्रीटी ऑफ नेचर। ट्रीटी ऑफ नेचर क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब सैलाब आते हैं या फिर ज़लज़ला आ जाता है, इनकी वजह से कुछ ऐसी तबाही हो जाती है कि एक समंदर है या फिर एक दरिया है, और उसकी जो लीगल बाउंड्स हैं, ये बाउंड्रीज हैं, वो किसी एक स्टेट में है, लेकिन बिकॉज ऑफ द लाइक इन्वायरमेंटल चेंजेस दैट पर्टिकुलर लाइक वी कैन से दैट पर्टिकुलर रिवर चेंज इट्स वे, और वो किसी दूसरी स्टेट की बाउंड्री में एंटर हो जाता है, वो अपना रास्ता चेंज कर लेता है। तो क्या होता है कि ये नेचुरल एक ट्रीटी होता है जो बेसिकली दो स्टेट्स के दरमियान साइन हो जाता है। ये दो स्टेट्स के दरमियान अल्टीमेटली बोथ ऑफ द स्टेट दोनों स्टेट्स को उसको एग्री करना होता है कि नाउ दिस साइड इज आवर पार्ट, नाउ दिस रिवर इज द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट एज वेल। Then there is according to parties. First one is bilateral. If the contract is between two states, then this is known as the bilateral, like we can say agreement or bilateral treaty. It is basically these are the contract treaties. These are the direct source of law and leads to formulation of international law. Then there is plurilateral. A plurilateral agreement is a multinational language or trade agreement between countries. Sorry, multinational or legal or a trade agreement. Like when that particular treaty is between different states, like not two states, not three states. Sorry, when the when the agreement is between more than two states, like at least three states, then this is known as a plurilateral agreement. And when an agreement is known as multilateral agreement, when a treaty is which is signed which three or more sovereign states, when there are three or more sovereign states are the parties in that particular treaty, and each party owns the same obligations to all other parties except the extent that they have stated reservations. Example of multilateral treaties includes the convention relating to the status of the refugees, the United Nations Conventions on the Law of the Sea, the Geneva Convention, and the Rome Statute of the International Criminal Court. Example UN Charter. अच्छा जी, प्लूरिलैटरल एग्रीमेंट, बायलैटरल एग्रीमेंट हमने देख लिया कि जी ये बेसिकली दो स्टेट्स के दरमियान होगा। प्लूरिलैटरल एग्रीमेंट जो है वो दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान होगा, लेकिन उसमें हर स्टेट का अपना एक लीगल स्टेटस होगा। कोई भी स्टेट उस बाउंड नहीं है उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को मानने के लिए। ठीक है, एग्रीमेंट तो साइन हो गया, of course they wanted to promote peace or whatever the purpose is, but they are not bound to follow. लेकिन मल्टीलैटरल ट्रीटी जो है वो एक ऐसा ट्रीटी है जिसमें अगर दो या तीन जिन भी स्टेट्स ने उस एग्रीमेंट को साइन किया है, वो सब के सब उसको फॉलो करने के लिए बाउंड हैं, और उसके अलावा उनकी जो भी रिजर्वेशंस हैं उनको भी काउंट किया जाएगा। और हो सकता है कि लॉ में आप ऑलरेडी मेंशन कर दें उसमें किसी भी किस्म की रिजर्वेशंस को, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होगा कि ईच ऑफ द स्टेट विल इक्वली बाउंड टू फॉलो दैट पर्टिकुलर रूल। जैसे कि अगर कोई भी स्टेट जो है वो यूनाइटेड नेशन जो है उसकी मेंबर स्टेट है, और उसके हमसाया स्टेट में जो है वो किसी भी किस्म की वॉर सिचुएशन या जेनोसाइड हो जाता है, तो जो भी नेबरिंग स्टेट है, दे आर बाउंड टू hold those refugees in the state,
और यूनाइटेड नेशंस उन्हें फंड्स प्रोवाइड करेगी ताकि उन रेफ्यूजीज़ को वो बेहतर तरीके से स्टेट में जो है वो एडजस्ट कर सके। इसी तरह से यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉ ऑफ सी के जो सीज़ हैं उनकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो भी डिफ़ाइन कर दी गई हैं कि ये हिस्सा जो है वो इनका पार्ट है, वो इसका पार्ट है। और अगर किसी भी मेंबर स्टेट को उस पर्टिकुलर बाउंड्री की ज़रूरत है तो यूनाइटेड नेशंस उस पर्टिकुलर स्टेट को बाउंड कर सकती है कि जी वो इनकी बाउंड्री जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। So this is how a multilateral treaty works. This is it for today. Thank you so much. Hope to see you in the next lecture, inshallah.